organized by Startup Incubation Center, CIMB, Business Incubation and Innovation Foundation, under the aegis of CIMB. On this occasion, I would like to accord a very warm welcome to our honorable chief guest, Shri Pradeep Kumarji, Director MSME DFO Patna. I would also like to accord a very warm welcome to our honorable guests come speakers, Shri Naveen Kumarji, IETS Assistant Director MSME Patna, Shri S.K. Verma ji, Assistant Director MSME DFO Patna, Dr. Hanif Mewati ji, Director KBIC Patna, and Shri Pradeep Kumar Jha ji, Manager SIDB Patna. I also heartily welcome Professor Dr. Rana Singh ji, Director CIMP, Shri Kumud Kumar ji, Chief Administrative Officer CIMP, and Professor Dr. Rajiv Verma ji. And last but not the least, all the participants and esteemed guests. Before we start, I take this opportunity to brief our honorable guests about our institute, a brainchild of our honorable Chief Minister, Shri Nitish Kumar, who also happens to be the chairman of the Board of Governors of the institute. CIMB was established in 2008 as an autonomous institute on the lines of IIMs with the active support and help from Government of Bihar to resurrect the educational glory of Bihar. Within a short span of time, the institute has achieved its international and national laurels and has secured a position in the top 125 management institutions in the country under the NIRF ranking 2022 conducted by Ministry of Education, Government of India. I would now request Ms. Anjali to present sapling to Shri Pradeep Kumarji. I would now request Ms. Khushbu to present sapling to Shri S.K. Verma ji. I would now request Ms. Anjali to present sapling to Shri Naveen Kumar ji. पहले मेवाती साहब के लिए ऐसी ठीक है प्लीज कंटिन्यू इस पर ये शेड्यूल इधर इधर थोड़ा सा इधर I would now request Ms. Khushbu to present sapling to Shri Naveen Kumar ji. I would now request Ms. Anjali to present sapling to Shri Pradeep Kumar Jha ji. वो रही So I would now request Ms. Ms. Anjali to present the sapling to our director, Professor Dr. Rana Singh ji. I would now request Ms. Khushbu to present sapling to our Chief Administrative Officer, Shri Kumud Kumar ji. May I now request Professor Dr. Rajiv Verma ji to deliver the welcome address. Good afternoon all. On behalf of CIMP and CIMP Business Innovation and Incubation Foundation, I, Professor Rajiv Verma, puts up my warm welcome to all the dignitaries and guests who are present for this particular event. I accord warm welcome to Mr. Pradeep Kumar ji, Director MSME, Dr. Hanif Mewati ji, Director KVIC, Shri Sanjeev Kumar ji, Assistant Director MSME, Shri Naveen Kumar ji, Assistant Director IEDS, Shri Pradeep Kumar Jha ji, Manager SIDB, who is present with us online,
I also put forward my warm welcome to Dr. Rana Singh ji, Director CIMP, Shri Kumar ji, Chief Administrative Officer CIMP, and all the participants who are present with us for this particular event. This particular event is very special in many sense. Today we are going to discuss about the applications and processes regarding Z. Now Z term is all about the sustainability of supply chain management, which ensures zero defect and zero effect. Since ages we have learned about so many techniques about ensuring efficiency in supply chain management. Say it Six Sigma, say it Kaizen, say it JIT. But now India is also in a position to have its own certification to ensure effective supply chain management and sustainable practices that can be provided under the umbrella of MSME. And this program ensures to enlist all these practices into the formal programs of MSMEs which are being offered by various departments. So in totality, this program, which ensures zero defect and zero effect, will let you learn about those techniques that ensures certification under this and will surely ensure sustainable practices that will lead you towards productivity maximization and optimization of resources. So with these words, I once again thank MSME, their team, who had taken their time to deliver this important subject to our participants, who are largely our MSMEs, micro, small and medium enterprises, which are being represented in the offline and online mode. Along with this, many students are also connected with this, because I think this is the first time when we are moving beyond the conventional subjects or conventional topics which we learn in our operation management, that talks about Kaizen, that talks about JIT, and now we are in a position, India is in itself in a position to learn about our own techniques, our own certification programs. So it's a very happy note in which we are here. So thanks to you once again, sir, for your presence, and everybody, thank you. And we wish that this is going to be an interesting education journey to all of you. Chief guest of this occasion, Shri Pradeep Kumar, Director MSME DFO Patna. Guest of honor, Dr. Professor Rana Singh, Director of this esteemed institution. Our distinguished guests, Dr. Hanif Mewati, Director KVIC Patna. My senior colleagues, Sri Naveen Kumar ji, Assistant Director. Sri Kumar Kumar ji, Chief Administrative Officer, CIMP. Professor Dr. Rajiv Verma, CIMP. Other guests present in this esteemed house, and the participants who have joined this program through web links provided by us. If we could recall the first speech of our Honorable Prime Minister from the Lal Killa in 2014, 15th August 2014, then we could remember that what was his clarion about this zero defect and zero effect policy. He rather invited all the fellow citizens of this country that हम कुछ भी ऐसा बनाए, this was the line of his speech, that हम कुछ भी ऐसा प्रोडक्ट बनाए जो विश्व के बाजार में किसी भी कोने में अगर जाए तो ख़राब क्वालिटी या गंदी क्वालिटी बोल करके वो हमारे देश में वापस नहीं आनी चाहिए, उसकी कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। और एट द सेम टाइम हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हम उसको बनाने में जो प्रकृति का हम दोहन करते हैं, प्रकृति को जो प्रतिकूल प्रभाव देते हैं, वो कितना कम से कम जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, बेंचमार्क है, हम उसको नियर अबाउट उसको टच करने की कोशिश करें। और 2014 में जब ये क्लैरियन पीएम के द्वारा कॉल किया गया था, तब हमारी मंत्रालय ने इसको एज ए अपॉर्चुनिटी अडॉप्ट किया कि हम कैसे हम इस ड्रीम को हम लोग एक रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, और फिर हमारी स्कीम्स की फॉर्मुलेशन शुरू हुई। और क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ हम लोगों ने इस प्रोग्राम को फॉर्मुलेट किया, और इसमें HEL, BEML, इन सारी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ UCI की टीम ने इसके साथ कंसेप्चुअलाइज किया, और एक जेड सर्टिफिकेशन, जेड जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट, इस कंसेप्ट की शुरुआत की गई। और यह जब बन के तैयार हुआ तो उससे पायलट स्टेज में 2016 में इसकी शुरुआत हुई थी।
जिस जेड सर्टिफिकेशन स्कीम की, जेड सर्टिफिकेशन प्रोग्राम की। और जब पायलट स्टेज की पायलट टेस्टिंग हुई इस स्कीम्स की, तो आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि जो BHEL जैसी ऑर्गेनाइजेशन इसमें फेल कर गई थी, क्योंकि इसके पैरामीटर इतने स्ट्रिंजेंट थे, इतने टफ थे कि अगर आप क्वालिटी पे अगर थोड़ा सा भी अगर आपकी कुछ दाएं बाएं होता है तो आप जो उसकी पहले 5 इसमें सर्टिफिकेशन हुआ करते थे, सिल्वर, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, डायमंड एंड प्लैटिनम। अब आज के दिन में फ़िलहाल हम लोग 3 सर्टिफिकेशन के साथ कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि ये 1 साल पहले इसको फिर से ओवरहॉलिंग करके हम लोग उसमें सस्टेनेबल स्कीम में लेके कन्वर्ट किए हैं, क्योंकि वो 5 पैरामीटर 5 सर्टिफिकेशन करने में बहुत सारी MSMEs सक्सेस नहीं हो पा रही थी। तो यह जो आज का प्रोग्राम हमारा है, हम उस जेड जर्नी को भी जानेंगे कि कैसे हमारी शुरुआत हुई। इस जेड सर्टिफिकेशन, हमारी जो जेड सस्टेनेबल जेड सर्टिफिकेशन की स्कीम्स है, इसमें हमारे क्या क्या पैरामीटर्स हैं। और जेड सर्टिफिकेशन बेसिकली इस कंसेप्ट के साथ ही लाया गया था कि बाहर बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, बट वह उनको क्वालिटी की डाउट है। बहुत सारे ऐसे आप लोग एक बात को देखेंगे कि डिफेंस के प्रोडक्शन पे हम आज भी आत्मनिर्भर नहीं हैं। डिफेंस में हमारे जितने वेपन्स आते हैं, जितने हमारे ऐसे कंज्यूमेबल्स हैं, बहुत कुछ इंपोर्ट पर हम लोग सब डिपेंडेंट हैं। जेड एक ऐसा हमें पाथवे प्रोवाइड करता है जो हमें इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन की ओर पुश करता है, और बहुत सारे ऐसे इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स हैं जिसका हम लोग सब्सटीट्यूट इंडिया में तैयार कर सकते हैं, और उसके लिए जेड सर्टिफिकेशन बहुत ही मैंडेटरी है। तो जो 50 पैरामीटर्स के साथ जेड की जर्नी शुरू हुई थी MSMEs के लिए, जिसमें मिनिमम 30 पैरामीटर्स पे तो उनको असेस करना ही होता था, उस 30 पैरामीटर में भी बहुत सारे MSMEs सस्टेन नहीं कर पा रहे थे। और अगर आप डिफेंस में जाना चाहते हैं, डिफेंस के सप्लायर बनना चाहते हैं, तो आपको अनदर उस 50 के अलावा अनदर 20 पैरामीटर्स को और अटेन करना होता था। ये हम इस सस्टेनेबल स्कीम से पहले की बातें थी। तो ये बताया गया हम लोगों को कि जब बाहर के जितने इन्वेस्टर्स हैं वो तो हमारे यहाँ इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हैं, लेकिन हम लोग क्वालिटी एश्योर नहीं कर पा रहे हैं। और जेड कहीं ना कहीं उन्हें ये थर्ड पार्टी एश्योरेंस देता है जो जेड सर्टिफाइड MSEs हैं, MSMEs हैं, वो यहाँ पे क्वालिटी कॉम्पिटेंट हैं। और जेड जैसे आपको एक बताता हूँ मैं, सुंदरम फास्टनर एक ऐसी MSMEs है जिसका LC लगभग 1 साल पहले खुलता है। क्यों खुलता है? कि उसका नाम क्वालिटी के लिए डॉक्टर डेमिंग अवार्ड्स वो जीत चुके हैं। तो इंडिया में ऐसी बहुत सारी कंपनी हैं, बहुत सारे ऐसे MSMEs है बड़ी कंपनियों के अलावा जो क्वालिटी पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, और उनके प्रोडक्ट में कंप्लेन लगभग नील है। वो उनका कंप्लेन हैंडलिंग जो है PPM में जाता है, उन्होंने 6 सिग्मा एवं 7 सिग्मा अटेन कर लिया है। तो यह जो जेड सर्टिफिकेशन का हमारा स्कीम्स है, ये जेड सर्टिफिकेट हमें पुश करता है कि जितने भी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है या क्वालिटी के लिए जो भी हमें अचीव करना है, जो भी हमें अटेम्प्ट लेने हैं, जो भी हमें टूल्स अडॉप्ट करने हैं, अगर हम सबको अगर एक अम्ब्रेला में लेके आते हैं तो हम जेड के जितने कंप्लायंसेज हैं उसको कहीं ना कहीं कन्फर्म करते हैं, और साथ ही साथ हम उसमें सर्टिफिकेशन पे जाते हैं। अब आपको मैं इस स्कीम्स के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में बताऊंगा, उसके बाद हमारे सीनियर कलीग नवीन कुमार जी उसमें प्रेजेंटेशन में डिटेल प्रेजेंटेशन करेंगे। 3 पैरामीटर्स के साथ 3 सर्टिफिकेशन के साथ ये स्कीम हमारे इस इम्प्लीमेंट में पहली है हमारी ब्रॉन्ज सर्टिफिकेशन। ब्रॉन्ज के लिए हमारे पास जस्ट 5 क्राइटेरिया है। 5 क्राइटेरिया पे अगर आप कंफर्म करते हैं, आपको जेड की ब्रॉन्ज सर्टिफिकेशन ऑन द स्पॉट मिल जाती है, और उसकी कॉस्टिंग सिर्फ 10,000 रुपये है। उसके बाद अगर आप सिल्वर पे जाते हैं, सिल्वर के लिए आप अटेम्प्ट करते हैं, सिल्वर के लिए आपको जस्ट 14 क्राइटेरिया कोई फुलफिल करने हैं। अगर वो हो जाते हैं तो उसमें साइट असेसमेंट ऑप्शनल है, और साइट असेसमेंट के बाद आपको अगर आपको कोई NC लगता है, नॉन कन्फॉर्मिटी आती है, तो QC आपको टाइम देता है उसको कंप्लाई करने का, और अगर आप उसे कंप्लाई करते हैं तो आप सिल्वर के लिए एलिजिबल होते हैं, और सिल्वर के लिए भी मिल जाते हैं आपको। और उससे ऊपर है गोल्ड सर्टिफिकेशन। गोल्ड सर्टिफिकेशन के लिए आपको अनदर 6 पैरामीटर, मतलब 20 पैरामीटर्स, तो मैक्सिमम 20 पैरामीटर्स, जो 50 पैरामीटर्स के साथ थी वो 20 पैरामीटर्स में आकर के अभी काफ़ी अटेनेबल हो चुकी है। और अगर हम जेड सर्टिफिकेशन को अगर अडॉप्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग अपनी क्वालिटी को, अपने प्रोडक्ट क्वालिटी को कई हद तक, कई इवन क्वांटम जंप दे सकते हैं प्रोडक्ट में, हमारी मार्केटेबिलिटी बढ़ सकती है। और आपको एक बात मैं और शेयर करना चाहूँगा इसके साथ, कि जितने जेड सर्टिफाइड MSMEs हैं उसमें हर एक स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, PSUs, इवन बैंक्स कुछ ना कुछ एडिशनल बेनिफिट दे रहे हैं, अनाउंस किया है उन्होंने, जिसके बारे में हम लोग आपसे टेक्निकल सेशन में डिस्कशन करेंगे। तो मैं चूँकि विशेष ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बहुत सारे स्पीकर्स हैं और हम लोग प्रेजेंटेशन में इन चीज़ों को डिटेल में देखेंगे। विद दिस वर्ड्स, थैंक यू वेरी मच। श्री प्रदीप कुमार, IDS डायरेक्टर MSME DFO पटना, डॉक्टर राणा सिंह, डायरेक्टर CIMP पटना, डॉक्टर हनीफ मेवाती, डायरेक्टर KVIC पटना,
प्रोफेसर डॉक्टर राजीव वर्मा CIMP, श्री संजीव कुमार वर्मा जी, माय कलीग असिस्टेंट डायरेक्टर, श्री कुमुद कुमार CIMP, और यहाँ उपस्थित सभी उद्यमी, सभी पार्टिसिपेंट्स, फैकल्टी मेंबर्स, स्टूडेंट्स, मैं MSME DFO की ओर से आप सभी का अभिनंदन करता हूं और आज बताना चाहता हूं कि जिस विषय पर हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं वह विषय, जैसा कि वर्मा जी ने बताया, MSME सस्टेनेबल जेट सर्टिफिकेशन की बात हम लोग करने जा रहे हैं। और भारत सरकार की MSME मंत्रालय की यह स्कीम है जो कि क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया नई दिल्ली के साथ ज्वाइंट वेंचर में भारत सरकार ने लॉन्च की है, जिससे कि हमारे जो MSME है, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज हैं, उनको कॉम्पिटिटिव बनाया जा सके, उनकी क्वालिटी और इम्प्रूव हो सके और उनको एक इंटरनेशनल लेवल पे हम लोग पहचान दिलाना चाहते हैं, जिसके लिए भारत सरकार सर्टिफिकेशन लेवल पे भी सब्सिडी दे रही है। उसके साथ साथ जेट सर्टिफिकेट प्राप्त करने के बाद भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ दे रही है, जो मैं आपको चर्चा करूंगा। और यहाँ पर ये बताना चाहेंगे कि 3 लेवल हैं, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, और ये सब पैरामीटर्स के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि स्कीम को बहुत ही सरल बनाया गया है, जिससे कि हमारे देश में जितने भी MSME हैं वो पहले MSME जेट सर्टिफिकेशन पे रजिस्टर करें और रजिस्टर करते ही उनको 10,000 का रजिस्टर करके उनको प्लेज लेना है। प्लेज लेते ही 10,000 का वर्चुअल क्रेडिट उनके अकाउंट में आ जाता है और जब वो ब्रॉन्ज सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई करेंगे तो वो 10,000 के क्रेडिट को इनकैश करके ब्रॉन्ज सर्टिफिकेशन फ्री मिल जाए। आई मीन टू से कि देयर इज नो चार्जेज फॉर ब्रॉन्ज सर्टिफिकेशन, तो ये ब्रॉन्ज आपको फ्री मिल रहा है। अभी मैं दिल्ली गया था ट्रेनिंग लेने जेट सर्टिफिकेशन पे, तो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया इसमें बहुत मेहनत कर रही है और वहाँ पे बहुत सारे ब्रिलियंट इंजीनियर्स काम कर रहे हैं। जो बात हो रही है पैरामीटर की कि क्लीननेस होना चाहिए, सेफ्टी होना चाहिए, प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें, मतलब ब्रॉन्ज के लिए आपको कोई डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं चाहिए। ओनली यू हैव टू जस्ट अपलोड सम फोटोग्राफ्स थ्रू ए मोबाइल ऐप। जेट का मोबाइल ऐप आपको डाउनलोड करना होगा और रजिस्ट्रेशन हम लोग अभी यहाँ करेंगे। जिनके पास भी उद्यम रजिस्ट्रेशन है उनका रजिस्ट्रेशन हम करेंगे। रजिस्ट्रेशन फ्री है। ब्रॉन्ज सर्टिफिकेशन को हम फ्री इसलिए बोल रहे हैं कि 10,000 का चार्जेज आपको प्लेस लेते ही 10,000 आपको मिल जाता है। सिल्वर है उसका 40,000 है, गोल्ड का 90,000। हम किसी भी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बिहार में 1500 यूनिट जेट पे रजिस्टर हो चुकी है। आज की डेट में 17 लोगों को ब्रॉन्ज मिल चुका है। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, हमारे डायरेक्टर साहब यहाँ उपस्थित हैं, लेकिन टेक्निकल सेशन में हम आपको डिटेल में बताएंगे कि क्या पैरामीटर है, कैसे हमें आगे बढ़ना है। और जेट सर्टिफिकेशन स्कीम को जो एक नाम इसमें जुड़ा है सस्टेनेबल, तो आज के डेट में सस्टेनेबल इसको बनाया गया है और हमारे MSMEs को एक क्वालिटी और इन्वायरमेंट फ्रेंडली, डिफेक्ट फ्री प्रोडक्ट बनाने के लिए उनको हम लोग प्रोत्साहित कर रहे हैं। मंत्रालय उनकी मदद कर रही है और हैंड होल्डिंग सपोर्ट भी दे रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। Dr. Rana Singh, Director CIMP, President of this program. Dr. Hanif Mewati, Director KVIC Patna. Sri Kumud Kumar, CIMP. Dr. Rana Singh, Director CIMP. And all present dignitaries. It gives me immense pleasure to be here on this auspicious occasion
because jade is become the ornaments of our country. As our predecessor has told very correctly that, without amplification, the quality of the product, you cannot import your products, you cannot export your products. And I can tell with the proud that our MSME is contributing 40% in export in India. So you can understand how much chunk we are providing from MSMEs. That's why Government of India, Ministry of MSC has made a plan to give more emphasis on MSMEs to export their products. Why? Because our contribution is more than 40% in exports. In that context, what happened? JED scheme has been formulated and accepted by Government of India and inaugurated by Honorable Prime Minister of India. And it has been given some incentive by our ministry. And a lot of incentive has been given by other states of our country in this scheme. What incentive has been given by our ministry? What other states is giving incentive for getting JED to MSMEs, that will be discussed later on in our technical sessions. Our officers will let you know the things. But I can give you the overall view of the JED, why it is so much pertinent nowadays. As you know, some of our predecessor has told Six Sigma, Kaizen, Bukai. Earlier it was running very smoothly to keep our product in pace with the changing scenario in context of export. But then JED has taken place, and zero effect, zero defect. Why it has been adopted by Government of India? Because it is quality wise is worthy, quality wise is accepted to global level, and eco-friendly. It could not harm to our atmosphere when you produce this product. So considering this, maximum importance of the product should be qualitative and without harming our international environment. So if we consist these two qualities in the product, that will get automatically JED certification through our system, that is called JED certification systems. So when you make this product with this intention, you can contribute a lot to our society, to our country, to international standards. As you know that, Government of India, even Ministry of Railway has given some concession for JED certification MSMEs. Like Railway, he has given, partial concession. He has given partial concession if your product is JED certified. If you are JED certified, you are supposed to get a subsidy for the international Mela. If you want to go in international Mela and your product is JED certified, you will get some sort of subsidy from Ministry of MSME. So lot of components has been given for MSME certification under JED schemes. So why we have come together to you? Because all people from, I think from fraternity of technical educational line of thing. So let your prospective entrepreneurs think about it. They should not think always to get the job, as our predecessor Mr. Mewati has told. Let you also inspire them to be the master of MSMEs. He will not only create the job to our nations, but he will make our nations more prosperous. So first you let them understand what is MSME. My focus is to make you aware about MSME. So let your candidates aware about MSME. Let them understand how he can get the loan
from banks. Let them understand what product should be useful for them to manufacture. Let them understand how to make them more sellable in national and international level. How that product can be innovative to reach our commoners, common peoples. These are the parameters by which you can disseminate your propagation to existing your students. So some students should be, if you are in a position to deliver your mindset to your students, I think by that time our victory will come up. Our victory starts when you make them aware about MSMEs. So as you know that CIMP is our also HI host institutions, where we are giving only ideas. You are giving the ideas and we are just inculcate them through your lab by giving some financial inputs and something like this. So why it is like this? Why Government of India incurring a lot of expenditure for inculcating the innovations, inculcating for new ideas, for national awards, for international awards? Why? Because MSME is now become the backbone of our nation. We cannot think forward without considering MSME as a significant tool for the development of our nations. So this is one of the very, very conclusive sort of ideas, or we can trigger our MSMEs to boost our nations. So I will not take too much time because technical sessions is going to start. But I will again appeal you on this dais that let your candidates be MSME minded. You make your candidate MSME minded. He can think about establishment of industry. Nowadays, MSME's definition is very, very vital, very all sort of trading, all sort of servicing, and all sort of manufacturing coming under the umbrella of MSME. But this particularly JED scheme at present is coming only for product manufacturing, not for servicing, till now. So in due course of time, it may also cover the services also, but till now it is only for product of MSMEs only. So I extend my thanks to CIMP also. He has given a very good hospitality to us and given chance to make your fraternity more knowledgeable about MSME so that you can disseminate your ideas and your views to MSMEs. And I hope this scheme or this certification scheme or this program will get the boost for making our MSMEs more authentic, more pointed, and more dynamic, so that they can also get the JED certifications. Thank you. All the best. Shri Pradeep Kumar ji, the Sutradhar of this particular program, who extended support through their office to organize this program. This is called Awareness Program on Z scheme. And the head of this institution, Director, Professor Dr. Rana Sahab, present with us during the program. The Chief Administrative Officer, Kumar Singh ji, and Assistant Directors and their team from MSME DFO Office, Patna, faculty members of CIMP, students, and prospective or potential entrepreneurs, incubatees, and all those whose names I'm not able to address from here. I would like to welcome all of you here in this program being organized by MSME DFO Patna, which is basically based on promoting entrepreneurship. Entrepreneurship, this provides a way to become self-reliant, जिसके लिए आज आत्मनिर्भर भारत के बारे में बहुत सारी बातें बोली जाती हैं. So this has been continuously going on or developing its phases, its जो इसका तरीका है, स्वरूप है from ancient India. Many of the foreigners, many of the
developing countries, they are, seeking us on India to understand the best practices, especially for the, adopting by us, especially in the field of micro entrepreneurship. जब माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं या एंटरप्रेन्योरशिप में किसी भी तरह के साइज़ के हम एंटरप्राइज़ की जब बात करते हैं, तो ऐसी बहुत सारी प्रैक्टिसेस हैं जो इंडिया में आज भी अडॉप्ट की जाती हैं। एंटरप्रेन्योरशिप एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है और एक ऐसा करियर ऑप्शन है विच प्रोवाइड्स यू टू बिकम योर ओन बॉस, who can generate his own ideas, who can generate income for his own, not for his own, but he provides direct or indirect employments to others. He also contribute in the GDP of the country, of the particular state or the particular local economy. So this is also a kind of patriotism through which we can opt a career in this field, and we can develop ourselves, and we can develop the society, we can support to developing our countries. जहाँ तक जेड स्कीम की बात है तो हम देखेंगे कि भारत का जितने भी हमारे इंडिया में या हमारे देश में जो भी हमारे पुराने प्रोडक्ट्स हैं वो सब केमिकल लेस होते थे, नेचुरल होते थे। ऑर्गेनिक, अभी दोबारा से ऑर्गेनिक खेती के बारे में या ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के बारे में या केमिकल लेस प्रोडक्ट्स के बारे में या जो एनवायरनमेंट के ऊपर या किसी दूसरे तरीके से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हार्म ना करते हों, ऐसे प्रोडक्ट्स के या सर्विसेज के बारे में जेड स्कीम्स के माध्यम से या इस तरह के दूसरे बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं। यूएनओ के जो एसडीजीज़ हैं, 17 एसडीजीज़ जो यूएनओ ने नोटिफाई किए हैं, जिनको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के नाम से जानते हैं, तो उन सब में भी आप देखेंगे कि ऐसी कोई भी इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योरियल प्रैक्टिस, ऐसी कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो एनवायरनमेंट को हार्म करती हो या जो वहाँ की लोकल जो पॉपुलेशन है उसको हार्म करती हो, किसी तरह का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी भी तरह की कोई भी किसी तरह का नुकसान पहुंचाती हो, तो उन प्रैक्टिसेस को रोका जाता है, उन प्रैक्टिसेस को बहुत इनकरेज नहीं किया जाता है, उन प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करके उनसे बने हुए प्रोडक्ट्स को। बहुत सारी कंट्रीज़ तो ये साफ लिख देती हैं, एक अंडरटेकिंग लेती हैं कि ये जो प्रोडक्ट आप इंपोर्ट कर रहे हो हमारे देश में, इसमें चाइल्ड लेबर का यूज़ नहीं किया गया है, इसमें इन्वायरमेंट को हार्मफुल कोई भी इस तरह का कोई भी केमिकल इसमें यूज़ नहीं किए गए हैं। तो एक सस्टेनेबल एक पूरा इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए इन द फील्ड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप ये जेड स्कीम उसी के ऊपर पूरी तरह से फोकस्ड है, जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो हमारे यूएनओ के जो एसडीजीज़ हैं उनको भी फॉलो करती है। और जैसे ही यूएनओ के एसडीजीज़ को हम जब फॉलो करने लगते हैं हमारी एंटरप्राइज में, तो कहीं दुनिया के किसी भी देश में हमारा बना हुआ कोई भी प्रोडक्ट जब यहाँ से इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, तो उनको इंपोर्ट करने में या उसको जो शुरू में बात कही थी वर्मा जी ने, तो उसको उस लॉट को या उस प्रोडक्ट को उनको रिजेक्ट करने का कोई कारण नहीं बनता है। तो कुछ बेसिक जो नीड्स होती हैं आपको अपने देश के लिए जो आप प्रोडक्शन करते हैं और जो सैचुरेशन लेवल पे जब आप एक पहुंचते हैं तो आप किसी दूसरे देश में अपने प्रोडक्ट को टारगेट करने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए, उसके एक्सपांशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जब अप्रोच करते हैं तो बहुत सारी परमिशंस लगती हैं, बहुत सारे रिकॉग्निशंस लगते हैं और बहुत सारे ऐसे स्टैंडर्ड्स होते हैं जिनको हमको फॉलो करना होता है। अगर जेड सर्टिफिकेशन में आप गोल्ड सर्टिफिकेट जो इनका सबसे एडवांस सर्टिफिकेट है वो आप अगर एक्वायर कर लेते हैं, देन you would be able to be accepted by many of the countries with your products or services what you are going to provide, उसमें आगे बढ़ाने के लिए, लेने के लिए। ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़ आप देखेंगे कि गवर्नमेंट की अभी यहाँ पे फैकल्टी फ्रेटर्निटी है, स्पेशली स्टूडेंट कम्युनिटी के भी कुछ लोग जरूर जुड़े हुए होंगे, तो हम देखते हैं कि बड़े बड़े पैकेज के ऊपर जाके और प्लेसमेंट के लिए या जॉब एम्प्लॉयमेंट के लिए बड़ा काफ़ी चार्म रहता है। लेकिन मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि बाय बिकमिंग एंटरप्रेन्योर स्काई इज़ द लिमिट फॉर प्रोग्रेशन। करियर की बात करें आप या कुछ और की बात करें, मैं कुछ एग्जांपल भी कोट करना चाहूँगा कि फॉर एग्जांपल यूपीएससी अगर आपका टारगेट है, जो कि जनरली होता है अगर सरकारी नौकरी में कहीं कोई जाना चाहता है तो यूपीएससी इज़ द टॉप मोस्ट जो भी सबसे पहला एक चॉइस होता है। या कॉर्पोरेट सेक्टर में एमएनसीज में कहीं आप जाएंगे, आप चूँकि सीआईएमपी में हम यहाँ बात कर रहे हैं तो अच्छे प्लेसमेंट की बात करेंगे तो करोड़ों रुपए के और लाखों रुपए के पैकेजेस पे हमारे जो मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स होते हैं वो जाते हैं।
लेकिन ये चाहे जो करोड़ों रुपए के पैकेज पे जो मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स जाते हैं, या जो यूपीएससी में सेलेक्ट होकर टॉप पोजीशन भी जो मनचाहा केडर और मनचाही जो पोस्टिंग जो पा जाते हैं, वो लोग भी कभी उससे बड़ी कोई चीज़ अगर उनको मिल जाए तो वो उसको जो पोजीशन उन्होंने एक्वायर की है बाय क्रैकिंग द कंपटीशन और बाय ग्रेजुएटिंग, ये जो डिग्री अर्न करने के बाद में, अचीव करने के बाद में, वो किसी को गिफ्ट नहीं कर सकते हैं, या वो उस लीजेसी को कि अब मैं 60 ईयर्स का हो गया हूँ, रिटायर्ड कर रहा हूँ, तो ये पोस्ट आगे से आप संभालिए, ऐसा नहीं करते हैं। कोई भी आईएएस अपने बच्चे को कि अब ये आगे से आईएएस अब आप बने रहेंगे, ऐसा नहीं होता है। लेकिन एक एंटरप्रेन्योर ही ऐसा होता है, यही एक ऐसा करियर है कि जिसको आप जहाँ भी छोड़िएगा वहाँ से आपकी अगली जनरेशन इसको आगे बढ़ा सकती है। इवन मैं स्टूडेंट्स कम्युनिटी को यहाँ ये बताना चाहूँगा कि अभी एंटरप्रेन्योरशिप या स्टार्टअप को एज ए करियर ऑप्शन आप चुनते हैं, इसमें कुछ अच्छा कर पाते हैं, अच्छे से एस्टेब्लिश कर लेते हैं, एंड माइट बी योर अल्टीमेट गोल टू बिकम लाइक आईएएस ऑफिसर, या जो कुछ भी मैनेजमेंट ग्रेजुएट के बाद में किसी मल्टीनेशनल कंपनी में, किसी बड़ी कंपनी में बड़ी पोजीशन को एक्वायर करना। और ये स्टार्टअप या ये जो माइक्रो एंटरप्राइज आप शुरू कर दोगे, ये जिस किसी भी फेज़ में जब होगी और आपका जो अल्टीमेट सपना पूरा हो जाएगा, तो उस समय मैं आपको ये बता रहा हूँ, आप भी इस बात से सहमत होंगे। नहीं सहमत होंगे तो जब ओपन मंच होगा तो कोई बोले कि मेरी बात से सहमत नहीं है, तो आप आईएएस बन जाना, या आप वो जो एमएनसी में अपना पोस्टिंग ले लेना, और जो स्टार्टअप या जो एंटरप्राइज आपने शुरू की होगी, वो अपने मित्र को, अपने रिश्तेदार को, अपने भाई को, बहन को, पिताजी को, जिस किसी को भी पसंद करते हो, उसको आप सौंप के वहाँ से जा सकते हो, भाई आगे इसको चलाइए, इतना मैंने चला के इसको इस्टेब्लिश करके दे दिया, प्रॉफिट मेकिंग इसको बना के दे दिया। लेकिन कोई, ये क्वेश्चन में जरूर बाद में जब ओपन मंच होगा तो पूछना होगा, कोई ऐसा हो कि भाई मैं डॉक्टर बन जाऊं, मैं इंजीनियर बन जाऊं, मैं मैनेजमेंट ग्रेजुएट बन जाऊं, मैं फला नौकरी पा लूं, मैं फला पोजीशन पा लूं नौकरी के क्षेत्र में, एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में, और आप चाहें कि इससे बड़ा मुझे कुछ मिल गया है। फॉर एग्जांपल किसी मल्टीनेशनल कंपनी में, एक मीडियोकर मल्टीनेशनल कंपनी में आपको कोई अच्छी मिल जाती है कोई पोजीशन, और आपका गूगल में, आपका अभी ट्विटर ये बड़ा छाया हुआ है, एलन मस्क ने जब से उसको लिया है, या आप बात करें तो दूसरे किसी भी एरिया में, आपको उससे बड़ी कंपनी में या टॉप 10 टॉप 5 में से किसी कंपनी में अगर आपको कोई बड़ी पोजीशन आपको ऑफर मिल जाता है, तो क्या आप वो जो छोटा ऑफर है अपना, जो अभी का प्रेजेंट ऑफर है, वो किसी को गिफ्ट कर सकते हो, या मैनेजमेंट को ये रिकमेंड कर सकते हो कि ठीक है साहब, मुझे तो इससे बड़ा अच्छी पोजीशन मिल गई है, बड़ा पैकेज मिल गया है, अब मेरी जगह ये काम करेंगे? वो आपसे पूछेंगे भी नहीं। इवन एक सही कैंडिडेट का भी अगर आप रिकमेंडेशन करेंगे, देन दे विल फाइंड आउट बिहाइंड दैट, लाइक इज देयर एनी वेस्टेड इंटरेस्ट ऑफ योर रिकमेंडेशन, इज योर रिकमेंडेशन इज गुड, would that be profitable or beneficial in long term for the company? So they will not going to take even your suggestion, your recommendation, but as an entrepreneur अगर आप कहीं भी किसी भी मंच पे जाएंगे तो न केवल अप्रिशिएट किए जाएंगे, बल्कि आप अपनी लीडरशिप को पीछे छोड़ सकते हैं। अपने हिसाब से आप वीकडेज में कब ऑफ रखना है, आपके ऑफिस आवर्स क्या रखने हैं, आप कितने एम्प्लॉइज रखेंगे, लोग आपके हिसाब से काम करेंगे, आप लोगों के हिसाब से काम नहीं करेंगे। आप देश में डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस के माध्यम से कंट्रीब्यूट करेंगे। आप इस चीज़ के लिए गर्व कर सकते हैं कि मेरे टैक्स के पैसे से अस्पताल बना है, या मेरे टैक्स के पैसे से अभी पृथ्वी 5 जो मिसाइल का अभी किया था ना कुछ लास्ट 2-3 दिन पहले ही, आप ये सोच सकते हैं, मैं भी सोच सकता हूँ जो भी टैक्स पे करता है, कि मेरे पैसे से ये नेशनल डिफेंस की जो एडवांस इक्विपमेंट्स हैं उनके लिए रिसर्च होती है, या उनको बनाया जाता है या खरीदा जाता है, या जो हमारी देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं उनकी सैलरी मेरे पैसे से जाती है। आप ऐसा गौरवान्वित महसूस कर सकते हैं एंटरप्रेन्योरशिप एज ए करियर ऑप्शन की जो मैं बात कर रहा हूँ, या स्टार्टअप की जो मैं बात कर रहा हूँ। आत्मनिर्भर भारत बनाने में या एंटरप्रेन्योरशिप एज ए करियर ऑप्शन चुनने में सबसे पहला फ़ायदा इसके चुनने वाले को है, एक स्टूडेंट को है, एक एस्पिरेंट को है। इसका फ़ायदा गवर्नमेंट को, जो गवर्नमेंट इतनी सारी स्कीम्स चलाती है, उसको तो बहुत बाद में होता है कि आप जब सक्सेस होते हैं, उसको स्केल अप करते हैं, आगे ले जाते हैं, और अच्छे से इस्टेब्लिश करने के बाद में जब कभी टैक्स के दायरे में आते हैं तो आप गवर्नमेंट को कंट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन तब भी गवर्नमेंट किसी भी कितना भी बड़े लेवल के एंटरप्राइज को जब आप इस्टेब्लिश करते हैं तो कंटिन्यूसली किसी भी स्केल के एंटरप्रेन्योरशिप को या एंटरप्राइज को सपोर्ट करने के लिए हमेशा कंटिन्यूसली गवर्नमेंट जितना टैक्स आपसे लेती है उससे ज़्यादा गवर्नमेंट हमेशा स्कीम्स, सब्सिडीज़ और प्रमोशन आपका करने के लिए तैयार रहती है।
मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई का ही एक पार्ट KVIC भी है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, जिसको मैं यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एज ए डायरेक्टर। और मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई का ही एक पार्ट है DFO ऑफिस, जो डेवलपमेंट एंड फैसिलिटेशन ऑफिस, जो आपके इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रहा है या जेड स्कीम को जो प्रमोट करने के लिए इस प्रोग्राम को किया है। तो ये सारे जो प्रोग्राम्स किए जा रहे हैं, ये सारे प्रोग्राम सिर्फ इसलिए किए जा रहे हैं कि हमारी जो भी जानकारी है, उस जानकारी में अगर किसी तरह की कोई कमी है तो उस कमी को हमको पूरा करना है। इस कार्यक्रम के बाद में भी आपके बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। तो आजकल देखिए ज़माना IT का है, आप इनकी वेबसाइट पे जाइए, सारे ट्यूटोरियल्स आपको मिल जाएंगे, वीडियोस आपको मिल जाएंगे, स्कीम आपको मिल जाएगी, प्रोविजंस आपको मिल जाएंगे, ऑनलाइन अप्लाई करने का आपको वहाँ सारा पूरा मौका मिलेगा, वो आपको मिल जाएगा। मैंने इट इज़ ये बहुत पीछे की बात है कि आप किसी चीज़ के लिए हमको ऑफिस भटकना पड़े, जाना पड़े, लोगों से हमको रिक्वेस्ट करना पड़े कि हमें इसके बारे में जानकारी दीजिए। इवन इसके बाद में भी अगर आपको लगे तो यू आर फॉर्चुनेट इनफ, वेन एवर यू वांट, आप हमारे ऑफिस आइए। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन की जितनी भी स्कीम्स हैं उनके बारे में ऑनलाइन है, हालांकि आप आना चाहें आइए, हमें अपने इंस्टीट्यूट्स में बुला लीजिए, आप अपने फैकल्टीज़ को बताइए। स्टूडेंट से स्पेशली मैं कहना चाहूँगा, फैकल्टी से कहना चाहूँगा, अपने स्टूडेंट से पूछिए, कभी उनको लगता है दोबारा किसी तरह का कोई ऐसा काउंसलिंग सेशन है, कुछ उनके क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, क्योंकि क्वेश्चन क्वेरीज वहीं आती हैं जब आप उस पर सोचते हैं, पढ़ते हैं, उसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। वरना तो कभी कुछ नॉलेज नहीं है तो कन्फ्यूज़न भी नहीं है। मोर नॉलेज मोर कन्फ्यूज़न, नो नॉलेज नो कन्फ्यूज़न। सो जितना ज़्यादा नॉलेज आप एक्वायर करेंगे, गेन करेंगे, उतना कन्फ्यूज़न होगा। ज़रूरत है जिसका भी उसको आप बुला सकते हैं। तो उसके लिए थोड़ा सा जिज्ञासु बन के रहिए। देखिए, नौकरी के फील्ड में मैं फिर बाद में यही कह के अपनी बात को मैं यहाँ पे, चूँकि इनॉग्रल एड्रेस है, इसमें लंबी बात मैं नहीं कर पाऊँगा, मैं यहीं पे इसको समेटूँगा कि करियर और इस सब चीज़ों के बाद में सबसे पहले एक नागरिक के नाते, जिस देश में हम जन्मे हैं, जहाँ की हवा पानी और सब चीज़ लेके हम जीते हैं, उसके लिए हमारा फ़र्ज़ ये भी है कि वो देश हमारे ऊपर गर्व कर सके, हम उस देश के ऊपर गर्व कर सकें। तो जो एंटरप्रेन्योर जो क्वालिटीज़ होती हैं, वो लोग हमेशा न केवल अपने को, अपने आने वाली पीढ़ी को बहुत कुछ दे के जाते हैं, बल्कि अपने देश में भी, जिस देश में वो रहते हैं, उसको भी दे के जाते हैं। अगर आप जेड स्कीम का फ़ायदा उठा के इंटरनेशनल क्वालिटी के या ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो आप इसको एक्सपोर्ट करेगी आपकी कंपनी या आपका जो भी एंटरप्राइज होगा, जो भी वेंचर होगा। तो जब एक्सपोर्टर आप बनते हैं तो देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, किसी भी देश की गवर्नमेंट का सबसे लाडला बेटा बोलिए, सबसे लाडला दामाद बोलिए, एक्सपोर्टर ही होता है। क्योंकि एक्सपोर्टर कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज को एक्सपोर्ट करता है तो वहाँ से फॉरेक्स आता है, और जितना ज़्यादा जो फॉरेक्स लाता है कंट्री के अंदर, वो सबसे ज़्यादा लाडला, सबसे ज़्यादा सम्मान का हकदार होता है। न केवल उसको सम्मान मिलता है, बाकी सुख सुविधाएं तो धन के साथ में अपने आप में आती ही हैं। तो ये सारी चीज़ों के साथ में मैं जेड स्कीम के इस वर्कशॉप के प्रोग्राम में जेड स्कीम के बारे में पूरी चीज़ें ना बता के, क्योंकि ये सेशन बाद में नवीन जी लेंगे, आपका पूरा कंप्लीट उनका प्रेजेंटेशन होगा, कुछ लिटरेचर भी वो आपके साथ में शेयर किए हैं, प्रेजेंटेशन भी आई होप वो आपके साथ में शेयर करेंगे, ऑनलाइन बहुत कुछ इसके बारे में है। लेकिन जेड स्कीम जो है वो एक अगला स्टेप है। उससे पहले तो ये स्टेप है कि हम एक ये डिसीजन लें कि हमको एंटरप्रेन्योर बनना है या एंटरप्रेन्योरशिप की फील्ड में, हमको स्टार्टअप की फील्ड में हमको जाना है। तो आप जो भी अपना आइडिएशन कर रहे हैं स्टार्टअप के लिए, स्पेशली जो इंक्यूबेटीज़ हैं, जो भी आप कर रहे हैं, उसमें जेड स्कीम को अभी से अगर समझ लेंगे तो आप अपनी स्कीम को स्केल अप करने में, उसको आगे फ्लोरिश करने में, इन सब चीज़ों के प्रोविज़न्स को भी ध्यान में रखेंगे। और न केवल प्रोविज़न्स को ध्यान में रखेंगे, हमेशा हमको टारगेट बनाना चाहिए दुनिया का बेस्ट करने के लिए, दुनिया का बेस्ट बनाने के लिए। तो अगर दुनिया का बेस्ट आपको बनाना है तो ये रास्ता जेड स्कीम के उससे ही गुजर के जाता है। अगर जेड स्कीम को नहीं समझेंगे और जेड स्कीम के जो भी प्रोविज़न्स हैं उनको फॉलो नहीं करेंगे, तो ये रास्ता आपका हमारे ही लोकल एरिया में या आपका जहाँ कहीं भी जो भी आपका एरिया है वहीं जाके ख़त्म हो जाता है। तो अगर आप बड़ा सोचते हैं तो बड़ा सोचने के साथ साथ इस जेड स्कीम के जो भी प्रोविज़न्स हैं उनको अच्छे से समझिए, न केवल समझिए बल्कि उनको अपने स्टार्टअप्स में, अपने आइडियाज़ में, या अपने जो भी एंटरप्रेन्योरल आइडियाज़ या जो भी आपके विचार हैं, जो आपके इनिशियल जो सोचा है उसके बारे में इसके साथ भी समानांतर तरीके से, बराबर तरीके से सोचिए। मैं समझता हूँ मैंने शायद थोड़ा सा कंपैरेटिवली शायद ज़्यादा समय ले लिया हो, तो कभी और किसी और मंच पे, किसी और जगह पे हमें अगर मौका मिलेगा तो हम ज़रूर आप लोगों से, इस फ्रेटर्निटी से बात करना चाहेंगे। जहाँ तक खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन का सवाल है,
जो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जो फ्लैगशिप स्कीम होती है प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, जिसमें 50 लाख रुपीस तक के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और 20 लाख रुपीस तक के सर्विस यूनिट के लिए मैक्सिमम 35% तक सब्सिडी उसमें प्रोविज़न होता है। यानी 50 लाख रुपए की यूनिट अगर आप लगाते हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, तो 17.5 लाख रुपए उसमें सब्सिडी का प्रोविज़न होता है। लेकिन बियॉन्ड दैट लिमिट आल्सो लाइक 2 करोड़ रुपए तक की भी यूनिट अगर आप उसमें लगाना चाहते हैं और प्रोजेक्ट अगर बैंकेबल है या फिजिबल है, बैंक उसमें तैयार है आपका सहयोग करने के लिए, तो उनको भी हम वेलकम करते हैं। और इसमें लाखों एंटरप्रेन्योर हर साल इसका फ़ायदा उठाते हैं। आप अपने मोबाइल को अगर चलाते हैं, जो कि सब चलाते ही हैं, एंड्रॉयड या आईफोन iOS यूज़ करते हैं, दोनों पे आप जाके गूगल पे जाके अगर आप PMEGP ऑनलाइन ढूंढेंगे तो ऑनलाइन घर से ही अपने हाथ से ही आप कुछ क्लिक से उसमें आवेदन कर सकते हैं। पूरा ट्रांसपेरेंट है, पूरा ऑनलाइन है, कहीं किसी ऑफिस को आपको विजिट नहीं करना है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि जब ये एंटरप्रेन्योर बन जाएंगे तो हमारे ऑल ओवर इंडिया 7000 डिपार्टमेंटल नॉन डिपार्टमेंटल सेल्स आउटलेट्स हैं, उनके जरिए आपके प्रोडक्ट्स को, आपकी सर्विसेज को हम मार्केट प्रमोशन में आपकी मदद करते हैं। हमारा अपना ई-कॉमर्स पोर्टल डेवलपिंग स्टेज में है, ऑलमोस्ट बेटा वर्जन उसका लॉन्च भी हो गया है, उसके ज़रिए हम आपको सपोर्ट करते हैं। मिनिस्ट्री की बहुत सारी ऐसी स्कीम हैं, हमारी KVIC की बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं जिसमें स्टेट लेवल की, नेशनल लेवल की या इंटरनेशनल लेवल की जो एग्जीबिशंस हैं, उन एग्जीबिशंस में जाने के लिए उनके स्टॉल का व्यवस्था या उनका खर्चा या आपका जो एयर फेयर है या ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस हैं, जो भी नॉर्म्स के हिसाब से, एलिजिबिलिटी हिसाब से, वो आपको दिए जाते हैं। एज ए MSME यूनिट अगर आप अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आपको टेंडर में भी बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं। लाइक अगर L1 टेंडर आपका किसी का निकला है और उसके 15% के अंदर, 20% के अंदर अगर आपका कोई प्राइस कोट किया है आपने, तो जो भी सप्लाई किया जाना है मटेरियल, उसको L1 रेट पे अगर आप तैयार हैं तो वो भी आपको लगभग 20% 25% उसका आपको मिल जाएगा। महिलाओं के लिए गवर्नमेंट सप्लाई में एक अलग से उसमें रिजर्वेशन है, अगर महिला एंटरप्रेन्योर हमारे हैं तो। SC ST के जो एंटरप्रेन्योर हैं, नेशनल SC ST हब स्कीम एक चलती है, उसके लिए अलग से 4% के लगभग उसमें रिजर्वेशन है जो भी गवर्नमेंट की खरीदी है। KVIC के जितने उत्पाद होते हैं किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, उसकी टोटल जो वार्षिक खरीद होती है उसका 20% बिना किसी टेंडर के सीधे वो उसमें सप्लाई ले सकते हैं GFR के नाम के हिसाब से। तो ये चीज़ें जो एंटरप्रेन्योरल माइंड के लोग हैं, मेरी बातें मैंने एक दो लाइन में बताई, वो मेरी बातों को समझ जाएंगे कि आप इतना उत्पादन ही नहीं कर सकते हैं कि गवर्नमेंट के इन प्रोविजंस का फ़ायदा उठा के बिना किसी टेंडर के गवर्नमेंट सप्लाई ही कर दें। उसी के लिए बहुत उत्पादन आपको बढ़ाना पड़ेगा, उसी में आप करोड़ों रुपये में खेलने लगेंगे, सही बोले तो पहले इतना कर लीजिए। इसी के लिए गवर्नमेंट की इतनी सारी स्कीम्स हैं, और गवर्नमेंट की और भी जो बहुत सारी स्कीम्स हैं उनके बारे में धीरे धीरे आप समझेंगे, उसका फ़ायदा उठाएंगे। मैं यहाँ पे अपनी बात को समाप्त करते हुए CIMP के मैनेजमेंट का, फैकल्टीज़ का, एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार करना चाहूँगा। और धन्यवाद तो आभार करना चाहूँगा प्रदीप साहब का कि उन्होंने मुझे मौका दिया यहाँ पे इस मंच पे आप लोगों से इंटरेक्ट करने का, बताने का। बाकी भविष्य में ज़रूर ये शुरुआत हुई है तो इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। Honorable Shri Pradeep Kumar Jhaji, Manager, SIDBI, Patna. Dr. Hanif Mewati ji, Director, KVIC, Patna. Shri Pradeep Kumar ji, IEDS, Director, MSME, DFO, Patna. Shri Naveen Kumar ji, IEDS, Assistant Director, Grade 1 MSME, DFO, Patna. Shri S.K. Verma ji, Assistant Director, MSME, DFO, Patna. My esteemed colleague, Shri Kumod Kumar ji, CEO, CIMP. Professor Dr. Rajiv Verma ji. Esteemed entrepreneurs, future entrepreneurs, delegates, participants, research scholars, academicians, and all members attending the session online, offline. A very warm good afternoon to one and all. At the outset, I would like to extend my heartfelt thanks to MSME for considering us, not just making us the host institution, but also keeping us in mind for hosting this program on awareness on MSME Sustainable Z Certification Scheme. It's indeed a marvelous initiative,
And let me place on record my deep sense of gratitude to the Ministry of MSME for focusing on taking the quality and innovation dimension down to the grassroots level to one and all, especially in the MSME category. It would not be out of place to mention that India has leapfrogged from rank 86 to 46 to 40 in the last 3 years on the Global Innovation Index. And thanks to the various missions of the respective ministries and the initiatives of MSME, which is focusing on quality and innovation dimensions. तो मैं MSME के सभी जो हितधारक हैं और यहाँ के जितने भी ऑफिस बेयरर्स हैं, मैं उन सबका हृदय के अंतर्मन से धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। और मैं इस मंच के माध्यम से सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जो क्वालिटी की मिशन है वो जापान से शुरू हुई थी। जापान इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ड्राइविंग फोर्स इन द एरिया ऑफ क्वालिटी. And I was blessed to be part of Delhi Productivity Council in the initial years of my career, which was again a part of National Productivity Council. And I got opportunity twice to go to Tokyo to represent NPC through DPC, but somehow I could not make it for some very personal reasons. The major focus of Z, we all have discussed, is to focus on getting the certification. Well, this is level 2. The first mission is to drive the mission of quality. And one of my dear friends, who's also the Secretary General of Quality Council of India, thanks to this program, during the program itself, I requested Kumunji just sign an MOU because he was erstwhile Vice Chancellor of Sharda University, is now the Secretary General. I've requested him to sign an MOU and call him to the state of Bihar. So the mission of quality accomplishment is an ongoing journey. While we say quality is journey, not a destination, we have to consistently drive on the mission of ensuring new levels of quality. Please forgive me for my sore throat. So let us understand let us understand what are the key driving forces of quality. And before this, let us understand the definition of productivity. Internationally, and even in our country, productivity is the ratio of output to input with desired specifications of time and quality. उत्पादकता जो है वह रेशियो है जो कि आउटपुट और इनपुट की रेशियो को डिफाइन करता है, लेकिन उसके साथ साथ दो कंडीशंस हैं, टाइम और क्वालिटी. सो विद डिजायर्ड स्पेसिफिकेशंस ऑफ टाइम एंड क्वालिटी. तो अगर हम सीमित समय में बेहतरीन क्वालिटी को इंश्योर करके कम से कम इनपुट लगा के अधिक से अधिक अगर हम उत्पादन कर सकें, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी. And that makes our product globally acceptable, and that maximizes and enhances our export potential. और हमारे एक कलीग कह रहे थे कि सबसे लाडला दामाद वो होता है जो फॉरेक्स लेकर आता है. That's very, very important. I was listening to all the brilliant luminaries which we had here. It was very insightful to listen all the data, statistics which was discussed. So let us understand the mission to focus on quality is very, very important. And so I started with productivity, the ratio of output to input with desired specifications of time and quality. So in case of manufacturing, it is one of the most challenging dimension to minimize the time unless we are mechanizing. Now, if we are involving too much of technology, that has its own share of impact on employability. India has a lot of manpower. So if we go for too much of mechanization, it impacts the overall productivity. However, the best part is to focus on quality with least amount of mechanization if we can maximize the quality. And I'll take the example of Dabbawala.
the Dabbawala from Mumbai, though even services is not included currently in Z certification, but even in services sector, India's Dabbawala was considered by Harvard, Wharton, Kellogg, some of the top-notch business schools, for ensuring 6 sigma efficiency, which allows only 1 error out of million. So that's the kind of efficiency we have accomplished and we have shown to the world. So here is the time for us to sensitize all the entrepreneurs, the importance of quality, how we can achieve it, and how we can make application for the Z certification. वक्त आ गया है कि हम उद्यमियों को इस बात से अवगत कराएं, प्रक्रियाओं से उनको अवगत कराएं, ताकि वो अधिक से अधिक संख्या में इसके फायदों को जान पाएं। हमारे यहाँ अरबों की तादाद में सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स खरीद करते हैं, परचेज, और वो एक इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है। अगर वो समझ लें कि अगर हम Z सर्टिफिकेशन कर लेते हैं तो हमारी डायरेक्ट एंट्री हो जाती है CPSU में, और उसका एक सिंपल आउटकम है। मैं तो बहुत ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ एक पॉइंट में क्लोज कर दूंगा। अरबों की खरीद होती है डिफेंस के द्वारा और सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के द्वारा। तो अगर वो Z सर्टिफिकेशन ले लेते हैं, जिसके लिए सरकार काफी हद तक उनकी आर्थिक सहयोग भी कर रही है, उनकी गाइडेंस कर रही है, उनकी कंसल्टेंसी कर रही है, उनकी गैप एनालिसिस करके देने के लिए तैयार है, उनके असिस्टेंस के लिए, उनकी हैंड होल्डिंग के लिए तैयार है, कंसल्टेंसी दे रही है उनके लिए QCI, नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल, तो भारत के ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी, तो भारत के जो ख्याति प्राप्त, जो लब्ध प्रतिष्ठित संस्थान हैं, उनसे जो है उन्हें परामर्श दिलवा रही हैं, उन्हें वित्तीय सहायता दे रहे हैं, और आजादी के 75 वर्षों के बाद इतनी सकारात्मक रुख है कि सरकार के जितने नुमाइंदे हैं वो जन जन तक जाकर बता रहे हैं कि आप इस कार्यक्रम से जुड़िए। अन्यथा पहले लोगों को ऑफिस के धक्के खाने पड़ते थे, लोगों के दर्शन नहीं हो पाते थे। तो ये एक क्रांतिकारी बदलाव है, और इस बदलाव को सकारात्मक तरीके से लेकर हम लोग जन जन तक पहुंचाएं, उद्यमी को तक पहुंचाएं, ताकि भारत के जितने भी उत्पाद हैं, MSME के उत्पाद हैं, वो विश्व के कोने कोने तक पहुंच सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम Z सर्टिफिकेशन के कार्यक्रम के लिए मैं सबसे पहले MSME को धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो हमारे संस्थान को इस कार्यक्रम के लिए चुना। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री प्रदीप कुमार जी को मैं दिल से धन्यवाद देता हूं, क्योंकि प्रदीप कुमार जी हमेशा हमारे यहाँ इससे पहले भी कई कार्यक्रम में आ चुके हैं, और जब भी हम लोगों को ज़रूरत पड़ती है या कोई भी मार्गदर्शन होता है तो प्रदीप कुमार जी का हमेशा सहयोग रहता है। आज के इस कार्यक्रम में जो KVIC के निदेशक हनीफ मेवाती जी का मैं धन्यवाद देता हूं कि वो संभवतः पहली बार हमारे यहाँ आए हैं, और ये जान के हमें और खुशी हो रही है कि आप एंटरप्रेन्योरशिप के ही प्रोफेसर भी रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि आपका आगे भी हमारे यहाँ आगमन होता रहे, उद्बोधन भी, हाँ, उद्बोधन भी होता रहे, और आपके एंटरप्रेन्योरशिप वाले ज्ञान का जो है हमारे बच्चे भी उसका लाभ उठा पाएँ। उद्बोधन ही नहीं, ये फाइनेंसर भी रहेंगे आपके, जी समर्पण भी, धन समर्पण भी करेंगे। ये मैंने की बात को सप्लीमेंट ज्ञान की तो सीमा होगी, धन की कोई सीमा ही नहीं है। बिल्कुल, उद्यमियों के लिए। हालांकि हनीफ मेवाती जी से मेरी एक बार पहले भी मुलाकात हुई थी, लेकिन उस समय ये जो इनका जो इस क्षेत्र में ये प्रोफेसर रहे हैं, इसका मुझे, हाँ, ये स्वरूप मुझे पता नहीं था। तो बहुत बहुत धन्यवाद हनीफ मेवाती जी का। साथ ही मैं हमारे साथ क्लोजली काम करने वाले हमारे मित्र SK वर्मा जी का मैं धन्यवाद देता हूं। हम लोग साथ काफ़ी काम करते रहे हैं, और जब भी कभी इन्होंने पहली बार आके कहा कि इस तरह का कार्यक्रम करना चाहते हैं, मैं आगे भी सर को कहता हूं, प्रदीप जी को, कि MSME से रिलेटेड कोई भी, अगर एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड कोई भी प्रोग्राम हो तो CIMP आपके साथ जो है वो खड़ा है। साथ ही मैं नवीन जी कुमार जी को धन्यवाद ज्ञापन देता हूं
कि वो इसमें इस कार्यक्रम में जो है अपने टेक्निकल सेशन के माध्यम से हमारे जितने भी इनक्यूबिटीज़ हैं उनको लाभ देंगे। साथ ही हमारे निदेशक डॉक्टर राणा सिंह जी का मैं दिल से धन्यवाद ज्ञापन करता हूं, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर के हमारे निदेशक महोदय बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव रहते हैं और इनकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी, लेकिन ये प्रोग्राम के नाते ये आए हैं और फिर ये चले जाएंगे अभी रेस्ट करने के लिए, चूँकि इनकी तबीयत काफ़ी ख़राब है। और यहाँ जितने भी लोग फिजिकल माध्यम से जितने भी इनक्यूबिटीज़ जुड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं और जो ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हुए हैं, उन सब का मैं धन्यवाद देता हूं और आज के इस कार्यक्रम का वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा पाएँ, इसके लिए मैं उनको शुभकामना देता हूं। लास्टली मैं अपने टीम को और हमारी जो सहयोगी है प्रज्ञा, अंजलि, खुशबू, सबको मैं धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. Now, may I request Professor Dr. अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे।